नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और खास बातचीत एक और खास शख्सियत के साथ आज हम करने वाले हैं। मिस्टर मोहन सावरकर, जो कि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स के। थैंक यू मोहन सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टाइम्स ड्राइव। Thank you, Ankur. Nice to be with you today. तो रिसेंटली बहुत एक्शन टाटा मोटर्स की तरफ से हमें साल 2024 में देखने को मिला है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज को लेकर, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर। सबसे पहले मैं सीएनजी वाले एस्पेक्ट पर बात करना चाहूंगा, जहां पर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में लेकर आई है, दैट इज समथिंग जो कभी ना कोई ब्रांड इंप्लीमेंट कर पाया था या कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ये टेक्नोलॉजी टाटा लेकर आया, तो माय क्वेश्चन इज कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे कितना रिसर्च रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अगर हम ट्रेडिशनल सीएनजी किट्स के कंपेयर करें इसको, तो वहां पर किस तरह का रिसर्च रहा है, और जो फाइनली प्रोडक्ट निकल के आया है, व्हाट इज योर फीडबैक आई मीन कस्टमर से जो मिलता है इसको लेके। Sure. So, first we'll speak of the twin cylinder itself and in CNG. So, the way that we wanted to look at the problem was that we would want to solve people's problems so that people are happier using the cars that the way they would like to use. So, in the initial days, you will notice that CNG was generally an option preferred by only the value buyers, and everyone else used to buy non-CNG cars. And the reason for this would be that the cylinder in the boot of the car doesn't look so nice, and people are not happy to have cars like that being driven by their families. So we try to solve this problem to make sure that the car is CNG, but then you get the car in a way that the CNG cylinder is not visible to you. In fact, you get a much more usable boot space. And then also that the CNG is made available in multiple variants of the car, including the top variants, including sunroof, for example. Okay. So this automatically meant that people who wanted to buy CNG because of the running cost, but wanted to make sure that their car does not look down market, suddenly had many options. And this is how we have been very successful in making the twin cylinder very popular. As far as safety goes, those are normal, traditional Tata Motors strong points. And we would, of course, do it in CNG cars also. So the way we made sure was a few areas. That, for example, if you open the fuel lid, then the car would shut off. So that if you're at a CNG station trying to fill CNG, automatically there is, let's say, a fuel shut off and the engine shuts off. And like this, there are many more technologies that ensure that you can actually start a car in CNG and switch to gasoline and vice versa. And anytime you do this, you don't feel the difference. The car drives just the same in both CNG and non-CNG modes. या And एक्चुअली आई you'll see that. एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, जो भी सीएनजी प्रोडक्ट्स अभी हाल ही में आए हैं, सो वो स्विच करने वाला जो प्रोसेस है दैट इज वेरी सीमलेस आई वुड से। क्योंकि आई मीन यूजुअली जो सीएनजी प्रोडक्ट्स में होता है कि पेट्रोल से सीएनजी या सीएनजी से पेट्रोल पे जो स्विच होता है, यू फील दैट ग्लिच और दैट गैप दैट हैपेंस। बट विद द ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आई वुड से कि वहां पर कोई वो ग्लिच फील नहीं हुआ। इट वाज द प्रोसेस फ्रॉम पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल वाज वेरी स्मूथ। True, true. And the way that we have enabled this is to use a single ECU for the CNG and petrol modes. So because it's a single ECU, it does not need time to switch from A to B or B to A. And I mean, the process is actually extremely seamless and no one can make out what's happening. And then we made sure that the car remains powerful, whether you're in CNG mode or in gasoline. It gives you the around the same torque at wheels at least, to make sure that your driving pleasure is not diminished, whether you're driving in CNG or in gasoline. So all of this. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीएनजी टेक्नोलॉजी, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो आई है, वहां पर ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट्स में टाटा मोटर्स की देखने को मिल रही है। अब आगे जो पोर्टफोलियो है, हाल ही में टाटा कर्व आई थी, तो वहां पर कैन वी आल्सो एक्सपेक्ट अ सीएनजी वर्जन ऑफ टाटा कर्व आल्सो, और हम कब तक वो लाने का प्लान है या क्या रिसर्च उस पर चल रहा है? So देखिए, हम आगे आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये उतना ही सच है कि सीएनजी जैसी टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत अच्छी है, और इससे CO2 भी कम होता है, और इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीएनजी का उपयोग करना भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरफ से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में हम सीएनजी ला पाएँ।
उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत जगह पे सीएनजी के स्टेशन खोले जा रहे हैं और नए नए पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सीएनजी के साथ जुड़ जाएगा। तो उससे भी सीएनजी में काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा लोगों के लिए उसको यूज़ करना, और उसके साथ साथ हमारी गाड़ियों में भी बढ़ोतरी होगी। अब अगला सवाल सेफ्टी से जुड़ा है मोहन। तो बेसिकली आई मीन पिछले 4-5 सालों में जो हमने देखा है टाटा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आई मीन जो कोर रहा है वो सेफ्टी को लेकर, वहां पर काफी ज्यादा ट्रैक्शन है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स में जिस तरह की सेफ्टी रेटिंग्स टाटा की गाड़ियों को मिली है, वहां पर कस्टमर्स उसकी वजह से टाटा की गाड़ियों की तरफ जाना शुरू हुए एंड वो सेल्स के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। बट अब जो कंपटीशन बढ़ रहा है, अब जो और ब्रांड्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं, वहां पर भी उस लेवल का सेफ्टी हमें देखने को मिल रहा है। सो डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी ऑल्सो टेक्नोलॉजी को लेकर भी या कुछ नए एरिया में अब थोड़ा और अलग करने की जरूरत है, अपार्ट इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑल्सो? तो जो आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे वहां पर हम किस तरह के चेंजेस अब देख सकते हैं या क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा की आने वाली गाड़ियों में? अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा कि आपने बताया सेफ्टी में हमारे साथ साथ अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जुड़ गए हैं जिन्होंने बीएन हम्म। कैप के लिए अप्लाई किया है, और कुछ गाड़ियां सर्टिफाई भी हुई हैं। हम्म। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ दुनिया में तो काफ़ी साल से है, हम्म। और वहाँ आप देखेंगे कि हर 2-3 साल में सेफ्टी का स्टैंडर्ड नया बन जाता है, जिसमें कुछ यस। और चीज़ें जुड़ जाती हैं। वो चीज़ भारत में भी होगी, और उस चीज़ के साथ हम भी जुड़े रहेंगे। लेकिन इसके साथ जो आज का बीएन कैप स्टैंडर्ड है, वो हम्म। सिर्फ गाड़ी का क्रैश में परफॉर्मेंस देखता है, हम्म। लेकिन सेफ्टी इससे ज़्यादा है। मतलब क्रैश ना हो, इसके लिए अडास, और अगर क्रैश हो जाए तो उसके बाद में मदद, ये दोनों चीज़ों को जोड़कर हमारी गाड़ियों में आगे बढ़ोतरी होगी। ये तो एडास के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं हम्म। कि हमारी बहुत सारी गाड़ी में अब एडास आ चुका है। उसके साथ में गाड़ी में ई कॉल बी कॉल बटन जुड़ता है, जिससे हम्म। अगर कहीं गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई या क्रैश ना भी हुआ और किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो आप मदद बुला सकते हैं। सो आई मीन वही मैं पूछ रहा था कि आने वाले जो अभी लाइनअप होगा 2025 में भी बहुत से नए प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, तो वहां पर हम क्या नए बदलाव दे सकते हैं? क्योंकि मार्केट जो है काफी ज्यादा बदल रहा है। 2025 आई बिलीव एक ऐसा साल होने वाला है जहां पर आइस के साथ साथ ईवी भी बहुत सारे में देखने को मिलने वाली हैं। तो वहां पर एक नया शिफ्ट मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगा, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ ब्रांड्स अपनी गाड़ियां लेकर आएंगे। तो व्हाट इज द प्लान जो टाटा मोटर्स लेके चल रही है अगले एक साल में, अगर आउटलाइन करें तो किस तरह की हम नई चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स से? अगर हम लोग को ट्रेंड देखना है, तो जैसे आपने दिखाया कि सेफ्टी में काफ़ी ट्रेंड रहेगा, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए एडास में काफ़ी ट्रेंड होगा, हम्म। और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी और इंफोटेनमेंट एंड पैसेंजर कंफर्ट, इन एरियाज में काफ़ी आपको बदलाव देखने मिलेंगे, और काफ़ी प्रगति भी होगी इन सब एरियाज में। सो इसके अलावा अगर कस्टमर ट्रेंड की बात करें, एक तो ब्रांड हम्म। अपने एंड पे रिसर्च करता है, एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी हर कुछ महीनों में साल भर में बदलती हैं। उन जो पिछले साल उनको गाड़ी में मिल रहा था, उसके अगले साल वो और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहां पर भी किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है? ये 2025 का जो साल है किस तरह से रहने वाला है, या प्रेफरेंसेस वाइज क्या आपको चेंज कस्टमर बिहेवियर में देखने को मिल रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल एक ज़माना था जब फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी मतलब झुकाव था, जी। और लोगों को लगता था कि फ्यूल एफिशिएंसी अगर अच्छी है तभी गाड़ी लेनी चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी से ध्यान काफ़ी हट रहा है, और पैसेंजर कन्वीनियंस कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि एक ज़माने में बजट कार्स के ऊपर बहुत फोकस था। हम्म। अब हम देख रहे हैं कि एसयूवीज की तरफ रुझान ज़्यादा है। हम्म। और हालांकि इस गाड़ी की कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन आप हम्म। देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी अराउंड 56% लोग एसयूवी लेते हैं ऑलरेडी, यस। और इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे भारत तरक्की करता जाएगा, उस तरह से गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी, और गाड़ी में क्या होगा इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सो अगर बात करें गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, तो वहां पर भी जो आइस व्हीकल्स को लेकर रेगुलेशंस, अभी फिलहाल 10 साल पेट्रोल 15 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल पे जो रेगुलेशंस हैं,
सो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जो ये आइस व्हीकल का पोर्टफोलियो रहने वाला है, वे कितना और श्रिंक होगा, या आपको कितना अभी दिख रहा है टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वहां पर कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है, अभी जो ईवीज पे थोड़ा बहुत हमें पुश देखने को मिल रहा है, वहां पर कस्टमर्स जो पहले हेजिटेट करते थे कि ईवीज की तरफ जाना है नहीं जाना है, वहां पर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, कस्टमर्स अब ज्यादा ईवीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये आइस और ईवी वाला जो फैक्टर है, यहाँ पर आपको कितना बिहेवियर में चेंज देखने को मिला है? सो आइस और ईवी में हमेशा कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केट बढ़ेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि ईवी की तरफ धीरे धीरे प्रेफरेंस बढ़ने लगा है, तो हम्म। उस तरह से मार्केट का डायनामिक्स भी बदलेगा श्योरली। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आइस की दुनिया में भी काफ़ी तरक्की हो रही है। अब आप देखेंगे कि जैसे कैफ़े का नया वर्जन आएगा अगले कुछ सालों में, हम्म। वो अभी ढल रहा है। वो जिस तरह से वो ढलेगा, उसकी बदौलत कार में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये भी बदलता जाएगा। लेकिन आइस गाड़ियाँ और ईवी गाड़ियाँ दोनों ही काफ़ी मतलब काफ़ी तादाद में बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ेंगी। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ कारों की बिक्री बढ़ रही है। उसमें भारत हम्म। भी एक है और चाइना दूसरा है। और ये जो ट्रेंड है वो आगे चलता रहेगा। और हम देखेंगे कि भारत में फोर व्हीलर्स के ऊपर खासकर काफ़ी तेजी होगी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में आई मीन वो जो चाइना में ओवरऑल फोर व्हीलर व्हीकल्स को लेकर चल रहा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स को लेकर बहुत सी इंटरनेशनल मार्केट में वहां पर उसका फर्क पड़ा है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में भी वैसा कुछ फर्क देखने को मिल रहा है, या जो इंडियन मार्केट की ग्रोथ है या इंडियन कस्टमर की प्रेफरेंसेस है वो आई मीन अलाइंड है, आई मीन दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स दैट आर गेटिंग इन द मार्केट? एंड जो आप जैसे टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड जो नए प्रोडक्ट्स हर साल लेकर आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, सो डू यू थिंक दैट दैट विल बी एबल टू आई मीन कंपटीशन वाइज अगर बात करें तो वहां पर एक कंपटीशन वाले लेवल पर हम अभी खड़े उतर रहे हैं, या और ज्यादा करने की अभी जरूरत है? आई आंसर इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। तो जिसको अगर रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा, हम्म। तो आप अब देखेंगे कि इंडिया का जो आज का परिस्थिति है, तो मे बी पीपल आर हैप्पी विद द कार्स दे गेट, हम्म। बट द रेट ऑफ चेंज इज वेरी हाई। स्पेशली इफ यू सी इन चाइना, द वेज उनकी जैसे गाड़ियां बदलती जा रही हैं हर साल, हर दो हम्म। तीन साल में, वो बहुत तेज है। और हम्म। उस तेजी से गाड़ियों में बदलाव भारत में आने में अब अभी मतलब शुरुआत हुई है, लेकिन और ये बहुत ये कुछ उसमें गुंजाइश है। ये फेसलिफ्ट मॉडल्स की बात कर रहे हैं जो हमें चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनकी बात? नॉट जस्ट फेसलिफ्ट, बट जो कार में जो टेक्नोलॉजी होती है या कार के अच्छा। अंदर जो एक्सपीरियंस होता है, कि इसमें बहुत चेंज हो रहा है चाइना में। भारत में अभी वो चेंज हुआ नहीं है, बट होगा, यहाँ भी आएगा। अगला सवाल मेरा इन बहुत जो दूर नहीं है, भारत मोबिलिटी एक्सपो। सो यहाँ पर अब टाटा के स्टॉल पर किस तरह के नए प्रोडक्ट्स तो आप बता नहीं सकते, बट किस तरह की नई टेक्नोलॉजी कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड किस तरह का अब जो ट्रैक्शन रहा है पिछले साल का, एंड नेक्स्ट अगर ईयर की बात करें 2025 की, तो वहां पर कुछ झलक हमें वहां पर आने वाले प्रोडक्ट्स की देखने को मिल सकती है, या किस तरह का वहां पे स्टॉल पे कस्टमर्स टाटा के एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। दिल्ली में ऑटो एक्सपो जब होगा तब आप देखेंगे कि कई सारी नई चीज़ें हम उसमें दिखाने वाले हैं। एंड बहुत सारी नई गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी होंगे, जिससे काफ़ी सारा एक्साइटमेंट रहेगा। My last question is, I mean, 2024, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और फ्रॉम योर इनसाइट्स, किस तरह का टाटा मोटर्स का रहा है, और 2025 आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रहने वाला है? सो हम लोग हर साल साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इस साल भी बढ़ रहे हैं, अगले साल भी बढ़ेंगे। लेट अस से वी आर एक्सट्रीमली बुलिश on the Indian market and our position in the Indian market, and we will continue to grow the way we have been growing. Thank you so much, Mohan, for joining us here at Time Track. Thank you. Thank you.